ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಅಕ್ರಮ ಎಸೆದ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಬಲಗುಟ್ಟದ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊರ ಹೊರಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 1 ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರಾಹುಲ್ 11. ಮತ್ತೆ ಭಾರತ್ ಲಕ್ಷಿಕಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪ್ ಬಿಜ್ವಾ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸದಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಓಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲತೆ. ಅಪೀಲ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರಾಹುಲ್ 11. ಸ್ಕೋರ್ 3 ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ ಮಿಜುಕಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಓಟ ಪೂರೈಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ತೃತೀಯ ನೇತ್ರ ತಡಪಾಯ. ಟೈಮರ್ ಆಫ್. ಫ್ರೆಂಚ್ ಟ್ರೋಫಿ 5 ದಿವಸಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಲವ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಂಗಾಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೀಣ್ಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ದಿನ 5ನೇ ದಿನ ಭಾನುವಾರ, ಆದಿತ್ಯವಾರದ ಈ ಶುಭ ದಿನ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಶ್ ತಂಡ ಒಂದು ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಡ್ರೀಮ್ 11 ಚೆನ್ನೈ ವಿರುದ್ಧ. ಈಗ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರಾಹುಲ್ 11 ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಉಡುಪಿಯ ತಂಡ. ನಾಟ್ ಔಟ್. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆ. ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೈಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರಂಗ 11 ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತದನಂತರ 4ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೆಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೂಪರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ PS ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಮೋದ್. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸತ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬೈ ಮುಖೇನ ಈಗಾಗಲೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ಹಿರಿಯ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಅಭಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ತೇಜ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಫುಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ತೇಜ ಅವರ ಪಾಲಿಗಿದೆ.
ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆತ ತಡೆದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಬಿಜ್ವಾ ದಿಲೀಪ್ ಬಿಜ್ವಾ ಹುದ್ದಾರಿ ನೆಲಕ್ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರನ್ನ ಪಡೆದಂತ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 5 ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ದಿಲೀಪ್ ಬಿಜ್ವಾ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜ್ವಾ ಹುದ್ದಾರಿ ನೆಲಕ್ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನೇಮ್ ರಾಹುಲ್. ಹೊಸ ಎಸೆಗಾರ ರಕ್ಷಿತ್ ನಂದಳಿಕೆ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಗುಟ್ಟಗಳಿಂದ ಹರಿ, ಸಿಲಿಮಿಡಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಿದಿಯೂರು. ರಕ್ಷಿತ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ರಾಹುಲ್ಗೆ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಪುನೀತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಪುನೀತ್ ಶಾಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್. ಆರಾಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸಿಕ್ಸರ್. ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲನ್ ಬಾತಮ್ ಈ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ನಂತರ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಲೈನ್ ಹಟನ್, ಆಶಾದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್, ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಡಿಲಿವಿಯಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತ ರಿಷಬ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಈಗ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್, ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಿತ್ ನಂದಳಿಕೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿರುಸಿನ ಆಡಾಟ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೈ ರೋಹಿತ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರಾಹುಲ್ 11. 2 ಚೆಂಡಿಗೆ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. PS ಟೂಲ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ 3,000 ಘೋಷಣೆ. ಈಗಾಗಲೇ 2ಕ್ಕೆ 2. 2 ಬಾಲ್ 2 ಸಿಕ್ಸರ್, 2 ಬಾಲ್ 2 ಸಿಕ್ಸರ್. ಈ ಬಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೆ ಆಟಗಾರ ರೋಹಿತ್ಗೆ 3,000 ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ PS ಟೂಲ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಿತ್ ನಂದಳಿಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮತೆ ಎಸೆತ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ತಡೆದ ಮೊತ್ತ 18.
ಇವತ್ತು PS ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಟ್ಟು 4 ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾನರ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೆ 3000 ಘೋಷಣೆ. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೇವಲ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. PS ಟೂಲ್ಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಿಸಿದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ 1 ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ PS ಟೂಲ್ಸ್ ಇಂದ 3000. ಅದೇ ರೀತಿ PS ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾನರ್ಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ 3000. ಸಹೋದರ ಸವಾಲ್. ಒಂದೆಡೆ PS ಟೂಲ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ PS ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಆಯೋಜಕರಲ್ಲಿ ಅವರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ಗೌಡ್ರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಔಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಘೋಷಣೆ, ಹುದ್ದರಿ ಆಘಾತ. ದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಸ್ ಗಾನ್ ಔಟ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಮಕ್ಬುಲ್. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಮೈಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕುಳ್ಳನ ವಾಮನ ಮೂರ್ತಿ ಆಟಗಾರ ಮಕ್ಬುಲ್. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭರತ್ ಕೋಟ ಯಾನೆ ಭರತ್ ಗಿಳಿಯಾರು. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆತ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗೊಟ್ಟುಗಳ ಹಿಂದೆ ಹರಿ 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಾಳು ಬಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗ ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ರೇಣುಗೌಡರವರ ಸಮರ್ಥ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಡೆ ಅತಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ಬರೀ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಕೂಡ ವ್ಯಯಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ತೃಪ್ತಿಯ ನಗೆ ಅವರನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮನೋಭಾವನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡೆದ ಮೊತ್ತ 19. The third over in progress. ಮತ್ತೆ ಭರತ್. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸಾದ್ ನೇರಲಕಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೀರೋ ಹಾಂಡದ ಕೀ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಕಳ್ಕೊಂಡವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಪಂದ್ಯಾಟನ ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ 5 ದಿವಸಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬದ ಅಂತಿಮ ದಿನವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ಈ ಹಿಂದಿನ ಆಟಗಾರ PC ಪ್ರಶಾಂತ್ ಫ್ರಮ್ ಪಡುಕೆರೆ. ಕಾರ್ಯ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲವ ಪ್ರಶಾಂತ್ಗೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರೇಣು ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಡುಕೆರೆ. ಈ ತರ್ಮದ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ, ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರಕಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷ ಷಟ್ಕ ಆರಾಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮಕ್ಬುಲ್
ಕೊಳ್ಳನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಿರಿದಾದ ಹೊಡೆತ. ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆತ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಕ್ಬಲ್. ತಡೆದ ಮೊತ್ತ 25, 25. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್. ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 26, 26. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಲೈವ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು SRE ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮುಖೇನ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾಗರ್ ಭಂಡಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಿತ್ರ ವೃಂದ SRB. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣದ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3. ಕಾಪಿಸುವ ನಂಬರ್ 3, ಸ್ಕೋರ್ 27. तीन ओवर का खत्म के स्कोर 27. 27 का 2 विकेट नुकसान हो गया. 27 के 2. PS ಟೂಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ PS ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹುರಿ ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. PS ಟೂಲ್ಸಿನ ಸುಬೋಧ್ ಅವರು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹಾಗೂ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ 1,500. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ 3,000 ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ PS ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರು ಅವರ ಬ್ಯಾನರ್ಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ 3,000. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಿಶಾಲ್ ಹೊಸ ನಾಯಕರನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಆಶೀಶ್ ಯತ್ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆರಗನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಬರ್ತಾರಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ರಿಶಾಲ್. ರಾಹುಲ್ಗೆ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹಿರಿಯ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಲೆಫ್ಟಿ ಸುಜಿತ್ ಆಚಾರ್ಯ SK ಮಾಲಿಕ. ಮತ್ತೆ ರಿಶಾಲ್ ಬಳಸುತ್ತ ಹೊಡೆತ. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್. ಗಾಳಿಯ ಸಹಾಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರಾಹುಲ್. 11. 35 ತಡೆದ ಮೊತ್ತ 4ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. 35. The 4th over in progress. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಮತ್ತೆ ರಿಷಾಲ್ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆತ ಸಿಕ್ಸ್ ಷಟ್ಕ ಆರೋಟ ರಾಹುಲ್ ಮುಖೇನ ತಡೆದ ಮೊತ್ತ 41 41 ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಿಷಾಲ್ ಯುವ ಎಸೆತಗಾರ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಎದುರಾಳಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಡೆಯಿಂದ. ಮತ್ತೆ ರಿಷಾಲ್ ಟು ರಾಹುಲ್ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗ ಅವಕಾಶ ತನ್ಮೂಲಕ ರಿಷಾಲ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆ ಕಡೆ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಡಿಗಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಶ್ವಿನ್ स्कोर 41 फॉर 3 41 के 3 विकेट नुकसान हो गया. ತಡೆದ ಮೊತ್ತ 41. The completion over number 4 score 41. ಮತ್ತೆ ಆಶೀಶ್ ಉತ್ತಮತೆ ಎಸೆತ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ 42-42. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮತೆ ಎಸೆತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಟಾಟೆ ಟಾಲವಾರಿ ಮತ್ತೆ ಆಶೀಶ್ ಶಾಲೆಯೂರು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ ಅಶ್ವಿನ್ ಮುಖೇನ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಎಡವಿಕೆ ಎರಡನೇ ಓಟ ಪೂರೈಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರೈಕೆಯೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಡೆದ ಮೊತ್ತ 44-44 44 for 3. ಮತ್ತೆ ಆಶೀಶ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ಈ ಬಾರಿ ಭರ್ಜರಿಯಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ ಶಿಕ್ಷಾ ಷಟ್ಕ ಆರಾಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಖಾತೆಗೆ ಅರ್ಧ ಶತಕದ
ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 50 40. ಡಾಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣುತ್ತ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 5. ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 5 ಸ್ಕೋರ್ 50 50ಕ್ಕೆ 3. ಸ್ಕೋರ್ 50. Last 3 hours remaining, 18 deliveries remaining, 18 balls remaining. 18 ಎಸೆತ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸುಜೀತ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಕ್ಬಲ್ ಖಾತೆಗೆ. 52. ಭರ್ಜರಿಯಾದಂತ ಹೊಡೆತ, ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಷಟ್ಕ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಬಲ್. ಕೊಳ್ಳನೆ ಮಕ್ಬಲ್ ಇವತ್ತು ಹಿರಿದಾದ ಹೊಡೆತವನ್ನ ಪೀಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೈಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಮಕ್ಬಲ್. ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಆಟಗಾರ ವಾಸು ಒಳಕ್ಕೆ, ಚೆಂಡು ಹೊರಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಡೆತ, ಮಕ್ಬಲ್ ಭರ್ಜರಿಯಾದಂತ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 64. ಭರ್ಜರಿಯಾದಂತ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗಾಳಿಯ ಒಂದು ಸಹಾಯ ದಾಂಡಿಗರು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ, ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಓಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈತನ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಬೈ ಮುಖೇನ ಗುಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ವೈಫಲ್ಯ. ತಡೆದ ಮೊತ್ತ 65. 65 ಪೈಸಾಟ್ 65.
ಮತ್ತೆ ರಿಶಾಲ್. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ. ಪುಟಿತವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟಾ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದ ಮೈಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವರ್ಸಸ್ ರಂಗ 11. ಟೂ ಟೀಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದಿ ಟಾಸ್. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಗದ ತಳ್ಳಿದ್ರು. ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಎರಡನೇ ಓಟ ಪೂರೈಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರೈಕೆಯೂ ಕೂಡ. ತಡೆದ ಮೊತ್ತ 67. ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಆಟಗಾರನ ಪಿಚ್ಚಿನ ಬಲ ಹಾಗೂ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂಪೈರ್ ಮಧು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ತಕೊಳ್ಳಿ. ಮಕ್ಬೂಲ್ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನ್. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣುತ್ತ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 6. ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಂಬರ್ 6 ಸ್ಕೋರ್ 67. Last overs remaining, 12 deliveries remaining. Score 67. 67. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಾಣಚಿಮಿಗಾಗಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಮೈಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ರಂಗ 11. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮೈಟಿ ಹಾಗೂ ರಂಗ ನಾಯಕರು ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಶೀಶ್. ಹುದ್ದರ ಆಘಾತವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಬೂಲ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಡೆ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆನಂದ್. ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರಾಹುಲ್ನ ತಂಡದ 12th ಮ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಮೆಹಲಾ ಮ್ಯಾಡಿ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಡೆದ ಮೊತ್ತ 68. 68. ಸ್ಕೋರ್ 68. 4 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದದ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಶೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಯಶಸ್ವಿ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರಾಹುಲ್. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗಿನ ಪ್ರವೇಶ ಅಂಕಣವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಆಶೀಶ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕೋಚ್ ಬಿಹೈಂಡ್.
ಓವರ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆಶೀಶ್ಗೆ. 4 ಚೆಂಡು 3 ವಿಕೆಟ್. ತಡೆದ ಮೊತ್ತ 68 ಅಂಕದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಫಾನ್. ಸುಬೋಧ್ ಅವರು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಆಟಗಾರನಿಗೆ 1,500 ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ PS ಟೂಲ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತಮತೆಯ ಸತ ಓವರ್ ನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ನಿರಾಕರಣೆ ಬಳಸಿ ಯಶಸ್ವಿ ಓವರ್ ಆಶೀಶ್ ಅಲೆಯೂರು ಹೆಸರು. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಳೆದ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 7. ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 7. ಸ್ಕೋರ್ 68. 68. ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಟೈಮರ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬೌಂಡ್ರಿ. 4 ಆಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸ್ಕೋರ್ 72. ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಿತ್. ಮತ್ತೊಂದು ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹುದ್ದರಿ ಆಘಾತ.
ಮಾಸದಿಂದ ರೇಣಗೌಡ ಇದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಧು ಸರ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಆಗಮಿಸುವಂತ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಿಲೀಪ್ ಬಿಜ್ವಾ ನಾರಿಯಲ್ ಪಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಚ್ಚಾ ಹೈ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ತಂಡ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್. ಎಂಬತ್ತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ ರಂಗಾಯಲ್ವ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಹ ತಂಡ ಮೈಟಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಇತ್ತ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ರಂಗಾಯಲ್ವನ್ ವರ್ಸಸ್ ಮೈಟಿ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಟೀಮ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅಜಯ್ ರಾಜ್ ಫ್ರಮ್ ಮಂಗಳೂರು. Hello, check. Mic testing 1 2 3 check. Hello, check. Hello, check. Mic testing 1 2 3 check. Hello, check. Hello. Mic testing 1 2 3 check. Hello, check. Hello. Hello, check. Hello, check. Hello. Hello, check. Mic testing 1 2 3 check. Hello, check. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स ट्रॉफी 2023 में बैठे तमाम दर्शक, क्रिकेट का जुनून जो रखते हैं, देश विदेश में जो इस क्रिकेट श्रृंखला को देख रहे हैं, उन सभी को अजय राज का सप्रेम नमस्कार। और बड़े विनम्र भाव से वेणु जी और उनके तमाम साथियों को, जो मित्र है, फ्रेंड्स
बेंगलोर, उनको हृदय से स्वागत करते हुए नमस्कार करता हूं। इस क्रिकेट श्रृंखला में वीआईपी गैलरी में बड़े बड़े महानुभाव बैठे हुए हैं, उन सभी को आज दोबारा स्वागत करते हैं इस क्रिकेट श्रृंखला में। और इस वक्त जो कि श्रृंखला एक बड़े पैमाने के साथ आगे चल रही है, और आज का ये मुकाबला जो कि इस वक्त चलता हुआ, आप जानते हैं मध्य प्रदेश की टीम है और रियल फाइटर्स मलपे कामाक्षी 11 मध्य प्रदेश, इन दोनों के बीच में यह संघर्ष चलता हुआ। मध्य प्रदेश के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कुणेगल मंजू कृपया कमेंटेटर बॉक्स की तरफ आइए प्लीज। कुणेगल मंजू, शानदार प्रहर और काफी शानदार हवा चल रही है, पूर्वैया बह रही है, सूरज की किरणें बहुत धीरे धीरे अपने तेज को ज्यादा करती हुई, और इस सेकंड स्टेज पीनिया मैदान में इस क्रिकेट श्रृंखला का ये आखिरी दिन चल रहा है। आज रात के पश्चात, हालांकि आज शाम को आपको पता लगेगा कि इस क्रिकेट श्रृंखला का विजेता चैंपियन कौन बना है। स्नेक रेस्क्यूअर वसंत जी से अनुरोध है, कृपया वो कमेंटेटर बॉक्स के सामने आइए। वसंत जी कृपया आइए, टॉस के लिए अगले मैच का टॉस जो कि फेंका जाना है, और इस वजह से उनसे अनुरोध करता हूं कि वो कमेंटेटर बॉक्स की तरफ आए। आइए आपको बता दें, कामाक्षी के कप्तान ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अब 82 रनों का लक्ष्य मलपे के टीम के सामने रखा है। दूर वाली छोर से एक गेंद इस बार ऑन साइड की दिशा में, गेंद को खेल दिया, एलबी के लिए पीट कर रहे हैं, और जी हाँ, शानदार गेंद थी स्टंप्स के दिशा में आती हुई। अंपायर को मजबूर होना पड़ा कि इस अपील को वो स्वीकार करें। जी हाँ, टाइमर को ऑफ करने का उन्होंने संकेत किया, और संकेत ये भी किया कि तीसरी आंख जो है, तीसरे अंपायर इस जिम्मेदारी को संभाले ताकि आश्वस्त हो जाएं सारे फील्डर्स, माफ कीजिएगा बैट्समैन, के नतीजा बिल्कुल सही है क्यों ना हो। जिस तरह से गेंद स्टंप्स के लाइन पर थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अगर पैर न आता बीच में तो गेंद जाकर स्टंप्स को उड़ा देती, और इस विश्वास के साथ अंपायर ने संकेत किया कि बैट्समैन आउट हो गए। ನಾಣ್ಯ ಚಿವಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈಟು ಬೆಂಗಳೂರು ವರ್ಸಸ್ ರಂಗ 11 ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವಣ ಸಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಾಣ್ಯ ಚಿವಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ನಾಣ್ಯ ಚಿವಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ टाइल इज द कॉल, और अंपायर ने कहा कि बैट्समैन आउट हो गए, इसी के साथ ये पहला विकेट गिर चुका है। ಮೈಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಇನ್ ದ ಟಾಸ್. ನಮ್ಮ ಮೈಟು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಟಾಸ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ಕೊಂಡಿರಾ, ಹಾಗೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಂಗ 11 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ರಂಗ 11 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ವಾಗತ ತಮಗೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ರೇಣುಗೌಡರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಪ್ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತೀರಾ, ಅವ್ರು ಮೈಟಿಯವ್ರು ಗೆದ್ದಿರ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವೊಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತುಂಬ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಕ್ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು, ಸ್ನೇಕ್ ವಸಂತ್ ಅವರು ಸರ್, ನಾಣ್ಯ ಚಿವಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತೀರಾ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಸರ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ರೇಣುಗೌಡ್ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನು ಪೀಣ್ಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಭಾಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಿಂದ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಥರ. ನನಗೊಂದು ಹೊಸ ಅನುಭವ. ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರೋಂಥ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅನುಕೂಲಗಳು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮುಂದೆ ಇದೇ ಮಾದರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ.
ಇದು ಸತತವಾಗಿ ಇದೇ ಥರ ನಡೀತಾ ಇರಲಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇವ್ರು ನಡೆಸೋ ಥರ ಇವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಹಿಂದೆದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾರ್ಯ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. थैंक यू. ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್. थैंक यू. तो अगले मैच में माइटी ने टॉस जीतकर जो कि निर्णय लिया है, आइए पहले इस मैच में आते हैं. इरफान दूर छोर से गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं और क्या कमाल की गेंदबाजी वो करें स्टंप्स के लाइन पर वो छोर से. इस ओवर की अगली गेंद राउंड विकेट. ये गेंद इस बार गेंद को ऑन साइड की दिशा में खेल दिया बहुत खूबसूरती के साथ. ऑफ साइड की दिशा में मिडल और ऑफ स्टंप के लाइन पर थी और उसको कवर की दिशा में, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में थोड़ा सा फ्रंट फुट पर अच्छी तकनीक के साथ बल्ले का मुंह खोलते हुए खेल दिया. जब तक फील्डर आकर गेंद को उठा लिए, आसानी के साथ बैट्समैन ने 1 रन पूरा कर लिया. इस 1 रन के साथ रन्स बढ़कर पहुंच चुका है 2 पर 2 रन्स 1 विकेट के नुकसान पर. बड़ी योजनाबद्ध तरीके से सटीक लाइन और लेंथ में इरफान की गेंदबाजी चलती है. वो विकेट उनकी गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, जोरदार अपील कर रहे, लेकिन इस बार अंपायर को इंप्रेस शायद ही कर पाए. बहुत जबरदस्त गेंद थी. शायद ऐसा लग रहा है कि वो रेफरल देना चाहते हैं. अंपायर ने लेग बाय का संकेत किया और इस बार बाल बच गए. बहुत अच्छी गेंद थी. बिल्कुल ऐसा लगा कि विकेटों के आसपास से गुजर रही है, लेकिन अंपायर ने विश्वास के साथ कहा कि गेंद स्टंप्स को छोड़कर थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल रही थी. इस वजह से इस अपील को उन्होंने खारिज कर दिया और इस 1 रन के साथ रन सब बढ़कर पहुंच चुका है 3 पर 1 विकेट के नुकसान पर. 3 फॉर द लॉस ऑफ 1. ये गेंद ऑन साइड की दिशा में उछाल दिया. कैच हो सकता है, फील्डर गेंद के नीचे आ गए. मिड विकेट क्षेत्र में कैच कर लिए गए. इसी के साथ एक और विकेट का पतन हो चुका है. एक और शिकार अर्जित कर चुके हैं. इरफान क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं. आज हम उनको खिताब दे ही देते हैं कि वो इरफान पठान की तरह गेंदबाजी कर रहे हैं. भारत के इरफान पठान जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का नाम कहीं ना कहीं अब वर्चस्व, हालांकि कहना चाहिए कि एक बड़े मकाम की दिशा में पहुंचाया. उसी अंदाज में इरफान गेंदबाजी कर रहे हैं और अलग वेरिएशन जिसे आपको देखने को मिल रहा है, विविधता के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं. इस बार थोड़ा सा ऑन साइड की दिशा में खेलने का प्रयास और कैच कर लिए गए. और मुझे लगता है कि गुरु हमारे साथ मौजूद हैं शानदार धुन बजाने के लिए, तो डीजे बिल्कुल तैयार है. प्रदीप स्ट्राइक एंड पर मलपे के और रियल फाइटर्स को जरूरत है, आवश्यकता एक भागीदारी की. इरफान का आक्रमण जारी है. इस बार गेंद स्टंप्स को छोड़कर थोड़ा सा शायद बाहर निकल रही थी. कदमों का इस्तेमाल किया और लेग बाय के रूप में 1 रन का इजाफा मधु जी ने संकेत किया. मधुसूदन मैसूर बीसीसीआई लेवल 1 को उत्तीर्ण कर चुके हैं और लेवल 2 को अटेम्प्ट कर रहे हैं. शानदार एम्पायरिंग वो कर रहे हैं. उनका साथ जो कि नवीन निभा रहे हैं. दोनों कदकाठी में लंबे हैं और अगर कहा जाए तो अच्छे शानदार एम्पायरों में गिने जाते हैं. कमाल की एम्पायरिंग चल रही है. हमारे जितने सारे 4 एम्पायर्स, राघु ब्रह्मावर और मदन मडिकेरी, और ये 2 अंपायर जिन्होंने इस श्रृंखला को अपना सब कुछ एक तरह से झोंकते हुए श्रृंखला को एक बड़े लेवल पर पहुंचाने का अच्छा खासा प्रयास, उनको हृदय से आभार प्रकट करते हैं. मेरा प्रयास यही रहता है कि उन सारे अंपायरों को, स्कोरर्स और जितने सारे क्रिकेट श्रृंखलाओं को योगदान देते हैं, शायद वो चाहे वो कमेंटेटर्स ही क्यों ना हो, उनका हौसला बढ़ाए और एक टीम के साथ आगे चलने का एक संकल्प लेकर मैं चलता हूँ, एक अलग सोच के साथ. हालांकि ये एक अलग बात है कि विचारधारा हर एक शख्स की अलग होती है, उसे शायद कुछ किया नहीं जा सकता है. आइए इस गेंद पर आते हैं. नया ताजा ओवर लेकर कमेंटेटर बॉक्स छोर से गेंदबाज आ रहे हैं. बॉलर्स नेम प्लीज. माफ कीजिएगा, सॉरी, पार्डन. तो माइटी टीम के कप्तान कृपया कमेंटेटर बॉक्स की तरफ आइए प्लीज. माइटी के कप्तान कमेंटेटर बॉक्स की तरफ आइए प्लीज. ओपन स्ट्राइक एंड पर
प्रदीप स्ट्राइक एट पर है। सुशांत की गेंद इस बार लेग स्टंप के बाहर थी और प्रदीप ने उल्टे हाथ से गेंद को खेलने का प्रयास किया। सुशांत पहले ही तैयार होकर आए थे कि उनको क्या हथकंडा अपनाना है। वो जानते हैं कि बैट्समैन शफल कर सकता है, स्विच हिट या रिवर्स स्वीप कर सकता है, इसलिए योजना बनाकर वो आ चुके हैं कि गेंदबाजों को परेशान करने के लिए उनके पास कौन से शस्त्र अस्त्र मौजूद हैं उसका वो प्रयोग कर रहे हैं। क्या शानदार गेंदबाजी, युवा खिलाड़ी हैं, गेंद को लेकर तैयार हुए, दौड़ना शुरू कर दिया। ओद विकेट, ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी कि बेहतरीन गेंदों में से। क्या जबरदस्त गेंदबाजी। पिछली गेंद जो लेग स्टंप के बाहर थी, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को इन स्विंगर के अंदाज में गई। गेंद थोड़ा सा टिप्पा खाने के बाद हवा में झूलती हुई गई। बैट्समैन फ्रंट फुट पर खेलने के प्रयास में न गेंद के पिच तक पहुंच पाए। अच्छी तकनीक इसे कहा जाता है कि आपको पूरे लाइन के ऊपर आना है, अपने फीट का मूवमेंट बिल्कुल गेंद की लाइन तक पहुंचने का प्रयास होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा लाइन से अलग रह गए। सुशांत तैयार हो रहे हैं लेकिन इस बार दिशा से भटक गए। जी हाँ, अंपायर को बाध्य होना पड़ा। जी, इस गेंद को नवीन जी ने कहा कि वाइड है, लेग स्टंप के ज्यादा बाहर थी, एक और रन खाते में जोड़ लिए जाएंगे। एक रन के साथ रन बढ़कर पहुंच चुका है 5 पर, 1 विकेट के नुकसान पर, 5 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। शानदार धूप खिली हुई है और पीनिया स्टेज 2 सेकंड स्टेज का ये मैदान। सुशांत की गेंद को उछालने का प्रयास, हवा में जा रही है गेंद, फील्डर गेंद के नीचे आ गए। लाल टोपी पहने वाला यह खिलाड़ी जिसने इस गेंद को कैच कर लिया, डीजे को अवसर मिला कि वो धुन बजाए। इसी के साथ एक और विकेट का पतन। ನಮ್ಮನ್ನು ರಂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿಜೆ ನವೀನ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಲಮಂಗಲ. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद डीजे नवीन। और उम्मीद है कि आज डीजे नवीन हमें अलग अलग शानदार नंबर्स को तैयार रखेंगे। फाइनल तक आपको दर्शकों को बहुत अच्छा धुन सुनने का अवसर मिलेगा। दोपहर के 12:45 और तेज धूप मैदान पर फैली हुई है। आकाश बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है और क्या बात है फ्रेंड्स, बेंगलोर ने जिस तरह से इस क्रिकेट श्रृंखला की रचना की है, उन सभी मित्रों को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिकेटर्स के लिए। सुशांत की गेंद इस बार फुल टॉस रह गई। गेंद को थोड़ा कवर की दिशा में खेलना चाहते थे, गेंद कवर और पॉइंट के बीच में निकल गई। हालांकि कवर के फील्डर ने दौड़कर गेंद को फील्ड कर दिया। 1 रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास। अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं सुशांत। मुझे लगता है कि कामाक्षी 11 मध्य प्रदेश के सशक्त गेंदबाजों में से गिने जाते हैं। कद काठी में लंबे नहीं है लेकिन उनकी गुणवत्ता की जो गेंदबाजी की है बहुत जबरदस्त दिखाई पड़ रही है। दौड़ना शुरू कर दिया इस छोर से हमसे दूर जाते हुए। और तो विकेट, ये गेंद फुल टॉस थी और इस गेंद का फायदा नहीं उठा पाए बैट्समैन। पवन ने इस मौके का फायदा नहीं उठाया। ऑनसाइड की दिशा में खेलना जरूर चाहते थे लेकिन थोड़ा सा मिस टाइम हो गया। फुल टॉस गेंद अचानक एक ऐसा पैतरा होता है गेंदबाजों का कि बैट्समैन को पढ़ने का मौका नहीं देते। अचानक गेंद को थोड़ा सा फुल टॉस या फिर ब्लॉक होल में कर देते हैं। इस बीच गेंद और जबरदस्त गेंद लेफ्ट हैंड बैट्समैन को, बाएं हाथ के बैट्समैन को आउट स्विंगर थी। टप्पा खाने के बाद घूमते हुए हवा में फ्लोट होते हुए निकली। मलपे के दीपू जी पधार चुके हैं, उनका हृदय से स्वागत है। दीपू जी कृपया आइए यहां पर और इस बड़े मंच की ओर पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। आपने इस क्रिकेट श्रृंखला की गरिमा को बढ़ाया। बहुत बहुत स्वागत है आपका दीपू जी, मलपे के दीपू। तो इस प्रकार ओवर समाप्त हो चुका है। ओवर की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 2 पर। 2 ओवर की समाप्ति पर रन बन चुके हैं 7 पर। 7 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, 7 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। शानदार मौसम चल रहा है और जैसा मैंने आपको बताया कि इस क्रिकेट श्रृंखला को रेणु गौड़ा, किरण गौड़ा और उनके सभी मित्रों ने, फ्रेंड्स बेंगलोर का हर वो शख्स जिसने इस क्रिकेट श्रृंखला को योगदान दिया, उन सभी को कहना चाहिए, उन सभी की प्रशंसा करनी होगी कि इस अविकसित जगह को मैदान में
बदल कर एक तरह से करवट बदल लिए, जिसे कहते हैं काया पलट कर दी। इस क्षेत्र की अविकसित क्षेत्र था जहां पर घास फूस और पेड़ पौधे थे, उसको पूरा निकालते हुए इस एक बहुत जबरदस्त मैदान बनाकर क्रिकेट श्रृंखला को के लिए बिल्कुल अनुकूल बना रहा है। वो छोर से गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और जबरदस्त गेंद थी, लगभग 75-80 केएस की रफ्तार की ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गुडलैंड स्पॉट से थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि साएं साएं करती हुई विकेट कीपर के दिशा में चली गई। बैट्समैन कुछ नहीं कर पाए। प्रदीप के लिए गेंद, लविश जो कि परिवर्तन के तौर पर उनको मोर्चे पर लगाया गया है, उनकी गेंद और बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि फिटनेस बहुत जरूरी है, हर उस गेंदबाजों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि जितने ज्यादा फिट होंगे तेज रफ्तार के गेंदबाजों को, खास तौर पर उनकी रफ्तार, उनका जो लाइन और लेंथ में, उसमें उनको काफी सहायता होगी। और इस वजह से हर उस क्रिकेटर को ध्यान देना चाहिए कि वो अपने फिटनेस पर काफी जोर थे। आकाश में कुछ पंछियां लहरा रही हैं, शानदार दृश्य है, दर्शकों की तादाद बढ़ चुकी है दूर वाले छोर से। ओवर द विकेट, बहुत अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद थी। लाविश क्या कमाल कर रहे हैं, गेंद को थोड़ा ज्यादा जोर दिया कंधों का और अंतिम समय पर कुछ ज्यादा झुक गए, जिसकी बदौलत गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा ज्यादा ऊंची उठी और उस गेंद को कवर नहीं कर पाए। थोड़ा सा कंधों तक ऊंची उठी, उसको थोड़ा नीचे रखने का प्रयास किया बैट्समैन ने, लेकिन विफल हो गए। सुजीत, स्ट्राइक एंड पर सुजीत के लिए बहुत अच्छा स्ट्रोक, लेकिन कमाल की फील्डिंग है। गेंद के पिच तक ले गए, अपने पैर को थोड़ा सा स्ट्रेच किया, कमाल का तकनीकी स्ट्रोक था। थोड़ा सा फॉरवर्ड होकर गेंद को ड्राइव किया हाफ वाली पर, लेकिन फील्डर मिड ऑफ पर जो मौजूद थे उन्होंने गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ रोक लिया। और छोर से लविश की गेंद, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, एक और बेमिसाल तकनीकी स्ट्रोक था, सही तकनीक के साथ खेला गया। फ्रंट फुट पर बल्ले पर आने दिया, गेंद को थोड़ा सा तिरछा एक्स्ट्रा कवर के दिशा में ढकेल दिया और साथीदार को बुलाकर एक रन पूरा कर चुका है। और इस एक रन के साथ रनों का लेखा जोखा आपको बता दें, 9 रन बन चुके हैं। सचिन जो कि स्कोरर और स्टेटस स्टेशन की भूमिका अदा कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन पुजारी जो कि मैनुअल और डिजिटल स्कोरिंग का जिम्मा उनका है, हालांकि पिछले कई दिनों से वो योगदान दे रहे हैं। मदन मडिकेरी जी भी मौजूद है। छोर से गेंद, इस बार गेंद को खेलने का प्रयास किया, लविश ने गेंद को थोड़ा ज्यादा नीचे रखते हुए एक तरह से यॉक कराने का प्रयास किया। इस प्रयास में गेंद को खेल दिया बैट्समैन ने, एक रन लेने का अवसर इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। कुल मिलाकर ओवर की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 3 पर। आप देख रहे हो शानदार फ्रेंड्स ट्रॉफी 2023। आइए हम बुलाते हैं कुणिगल मंजू को, जो बहुत शानदार तरीके से एंकर की मास्टर ऑफ सेरेमनी जिसे कहते हैं उसकी भूमिका अदा कर रहे हैं। हालांकि मेरा प्रयास हमेशा रहा है उन युवा कमेंटेटर्स को और उन युवा एंकर्स को प्रोत्साहन दे जो आगे हमारा भविष्य बन सकती है। और इस प्रयास में मैं चाहता हूं कि मंजू कुणिगल को भी अवसर दिया जाए कि वो थोड़ा सा आगे बढ़े इस क्रिकेट श्रृंखला में, उनको एक नया पायदान मिले। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಜಯ್ ಸರ್. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ 3 ಓವರ್ಗಳ ತರುವಾಯ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 10. ನೀವು ಕಣ್ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರೇಣುಗೌಡರು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ 2023 ಕಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। दो विकेट, ये गेंद इस बार लॉफ्ट किया, गेंद को कैच होगा। फील्डर बिल्कुल वहीं पर खड़े रहते हैं जहां पर गेंद हवा में चली जाती है, कैच कर लिए गए। नवीन जी से अनुरोध करता हूं कि शानदार धुन बजाए। शानदार कैच के प्रायोजक थे फ्रेंड्स ट्रॉफी 2023।
सुजीत आचार्य नॉन स्ट्राइक एंड पर और आशीष जो कि स्ट्राइक एंड पर हैं। सुशांत गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। शिकार प्राप्त उन्होंने कर लिया। कोटे का दूसरा पारी का चौथा ओवर लेकर वो आ रहे हैं। क्या जबरदस्त गेंदबाजी उनकी चल रही है। क्या मलपे का ये बल्लेबाज इस परिस्थिति को संभाल पाएगा। अग्नि परीक्षा है उन बल्लेबाजों की जब विकेट गिर जाते हैं। ये गेंद खेलने का प्रयास उल्टे हाथ से खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चूक गए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। लेग स्टंप के बाहर थी गेंद और क्या चतुराई के साथ गेंदबाजी कर रहे सुशांत। अनुभव ज्यादा न हो लेकिन गेंद की विविधता, उनको उसकी रफ्तार, उसका स्विंग देखकर पता चलता है कि ये कितना क्षमता प्रधान गेंदबाज है, कितनी क्षमता है और बड़े निपुण कुशल गेंदबाज दिखाई पड़ते हैं। आशीष स्ट्राइक एंड पर शफल होकर तैयार हुए। उल्टे हाथ से आशीष ने खेलने का प्रयास किया, चूक गए और विकेट कीपर गेंद को गैदर नहीं कर पाए। जो लेग स्लिप पर फील्डर थे गेंद को उठाकर उन्होंने थ्रो कर दिया और इस प्रयास में बैट्समैन ने आशीष ने 1 रन को पूरा कर लिया। सुजीत स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन चल रहा है और हौसला बढ़ाते हैं रियल फाइटर्स मलपे का कि दोनों बल्लेबाज अगर एक साथ मिलकर खेल को बढ़ाएंगे, भागीदारी बनाएंगे तो कहावत है कि 1 और 1 11 होते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? सुशांत आक्रमण पर तैयार हो चुके हैं। ओवर द विकेट उनकी गेंद इस बार आक्रामक तरीके से उछालने का प्रयास किया। शॉट ऑफ गुड लेंथ थी, टप्पा खाकर ऑफ स्टंप के लाइन के ऑफ स्टंप के सीध पर थी, उसको थोड़ा सा ऑन दी अप पुल करने का प्रयास किया। अगर सीधा बल्ला होता, कोहनी सीधा होता और तो मुझे लगता है कि शायद वो थोड़ा सा लॉफ्ट कर सकते थे, लेकिन हॉरिजॉन्टल बल्ले से गेंद को ऑन साइड की दिशा में पुल करने के प्रयास में चूक गए। रन लेने का अवसर नहीं। सुशांत ओवर द विकेट। इस ओवर की अगली गेंद और इस बार बहुत अच्छी गेंद थी, सुजीत आउट हो गए। क्या जबरदस्त गेंद थी, आक्रामक तरीके से गेंद को पुल करने का प्रयास किया। बल्ले का महिम सा सिरा स्पर्श करते हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में जाकर समा गई। सुजीत जो कि निराश होकर एक अच्छे विश्वसनीय बैट्समैन पवेलियन की ओर अपने कदमों को ले जा रहे हैं। डीजे नवीन जी से अनुरोध करता हूं कि शानदार धुन बजाए। इस शानदार कैच के प्रायोजक थे फ्रेंड्स ट्रॉफी 2023। क्या बात है, शानदार धुन। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। और गुरु जो कि कल हमारे साथ मौजूद है डीजे की भूमिका अदा करते हुए, इस छोर से आशीष दौड़ना सुशांत तैयार हो चुके हैं। और विकेट इस बार ये गेंद थोड़ा सा बैट्समैन को अनुमान में डालने के लिए कि गेंद फुल टॉस है, उसको थोड़ा धीमा फेंक दिया और ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी। मुझे लगा कि शायद अवसर जरूर था बैट्समैन को एक पास कि वो गेंद को ड्राइव करें, लेकिन डिफेंसिव बल्लेबाजी, इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर स्कोर इज ऑन 12 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 12 फॉर 5 दोहरा दूं, 12 रन बन चुके हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। एसआरपी स्पोर्ट्स का क्या कहना। हालांकि कल मैं आपको नाम बता चुका हूं उन सारे सदस्यों के जो कि कैमरामैन, टेक्नीशियन जितने सारे हैं जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं, और सागर भंडारी जी के नेतृत्व में ये क्या चल रहा है। कैमरामैन ने बहुत शानदार काम किया है और मैं जानबूझकर उनकी प्रशंसा इसलिए करता हूं कि कड़ी धूप से सवेरे से लेकर शाम तक, चाहे वो धूप हो या फिर ठंड हो, उस बड़े मंच पर बैठकर, विशेष तौर पर वो कैमरामैन जो बैठकर कैप्चर करते हैं, हर गेंद को कैप्चर करना होता है, उसका पीछा करना होता है, तब जाके आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये काम कोई आसान नहीं है, बिल्कुल बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये गेंद खेलने का प्रयास, चूक गए। थोड़ा सा घुटनों को झुकाने का प्रयास किया, पूरा विश्वसनीय स्ट्रोक नहीं था, आधे अधूरे मन से खेला गया स्ट्रोक, पैरों से टकराई और इसको कोई अपील नहीं किया गया। और मधुसूदन मैसूर के जो कि इस वक्त बिल्कुल स्तब्ध शांत हैं, दूर वाले छोर पर विकेटों के पीछे, उस छोर से गेंद को लेकर गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। इरफान की गेंद लेग स्टंप के बाहर है, इस बार बाध्य होना पड़ा अंपायर को। मधु जी ने कहा कि वाइड है, लेग स्टंप के ज्यादा बाहर थी। इरफान की गेंद जो वेरिएशन के प्रयास में, विविधता लाने के प्रयास में गेंद को थोड़ा लेग स्टंप के बाहर कर दिया और वो कुछ ज्यादा बाहर गई और अंपायर को मजबूर होना पड़ा कि इस गेंद को वो वाइड करार दे। तरुण पड़ुबिद्रे स्ट्राइक हैंड पर।
तरुण के लिए गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, स्ट्रेच किया, घुमाकर खेलना चाहते थे, मिस जैसे ही किया अंपायर की तरफ देखते हुए उन्होंने एक तरह से अपील की और अंपायर ने इस अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि वाइड है, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी और दोबारा वो स्ट्राइक एंड पर तैयार हो चुके हैं। ऑफ साइड पर अगर देखा जाए दायरे के अंदर लगभग 3 खिलाड़ी दिखाई पड़ रहे हैं। उस छोर से ये गेंद ड्राइव करने का प्रयास, लेकिन ऐसी गेंदें कहां मिल रही हैं, ढूंढ ढूंढ कर ऐसी गेंदें की जा रही हैं जो ब्लॉक होल में हो, कुछ रुक कर आ रही हैं, कुछ ऑफ स्टंप को छोड़कर जा रही है। इसलिए बैट्समैन को थोड़ा सा वो मोमेंटम प्राप्त करने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय लगेगा और ऐसे में इरफान का दौड़ना शुरू हो चुका है। ये गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, अंपायर ने वाइड कहा है, इस गेंद को घोषित किया। मधु जी ने दोबारा हाथों को फैलाया। आज मुझे लगता है कि इस मैच में थोड़ा सा व्यायाम मधु जी को भी करना पड़ रहा है, नवीन जी को भी। लैटरल रेस व्यायाम की भाषा में दोबारा आपको बता दें, शोल्डर के पश्चात, शोल्डर वर्कआउट के पश्चात जो लैटरल रेस किया जाता है फॉलोअप में, वो करने का अवसर। उस छोर से गेंद, क्या बात है, गेंदों को कभी ज्यादा लंबा कभी छोटा करते हैं। बैक ऑफ लेंथ थी गेंद, टप्पा खाकर उछल कर आई, स्विंग का अच्छा खासा मिश्रण, ऑन साइड की दिशा में खेलने के प्रयास में चूक गए, रन लेने का अवसर नहीं है। कछुए की चाल से रन चल रहे हैं और रियल फाइटर्स मलपे का हौसला बढ़ाते हैं। बल्लेबाजों को सोचना होगा कि उनको जीतना है तो आक्रामक स्ट्रोक्स लगाने ही पड़ेंगे। उस छोर से ये गेंद दोबारा बीट कर गई बैट्समैन को, लाइन पर न पहुंचे, लाइन से बिल्कुल अलग रह गए, बहुत दूर से खेलने का प्रयास, स्ट्रेच पूरी तरह से नहीं कर पाए और इस वजह से संपर्क बल्ले और गेंद के बीच में बिल्कुल नहीं हुआ। रन अभी भी वहीं पर स्थिर रहे। शॉर्ट टर्म ने कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी है, माफ कीजिएगा, मिड ऑफ बिल्कुल नॉन स्ट्राइक एंड के बैट्समैन के पीछे खड़ा है। राउंड विकेट ये गेंद इस बार स्टंप्स के सीध पर थी, ऑफ स्टंप के लाइन के आसपास, जिसको जैसे तैसे बैट्समैन ने खेल दिया। आक्रामक तरीके से खेलना चाहते थे लेकिन गेंद की रफ्तार ज्यादा होने की वजह से थोड़ा जल्दी गेंद बल्ले के निचले हिस्से सिरे से लगती हुई स्क्वायर लेग की दिशा में गई। एक रन लेने का अवसर इस एक के साथ कुल योग बढ़ चुका है। दर्शकों की तादाद बढ़ रही है, हाँ, उनका भी हौसला बढ़ाते हैं। दर्शक वही होते हैं जो क्रिकेट के स्तर को बढ़ाते हैं, अगर दर्शक ना हो तो मैच फीका पड़ जाता है। उस छोर से ये गेंद दूर वाले छोर से इरफान पठान ही कहते हैं, उनकी गेंदबाजी जो जबरदस्त चल रही है। ऑन साइड की दिशा में मिड विकेट में खेल दिया, एक रन पूरा हो, इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। आप देख रहे हैं शानदार फ्रेंड्स ट्रॉफी 2023। डीजे नवीन आपको शानदार धुन सुनाएंगे। धन्यवाद। तो इस प्रकार ओवर समाप्त हो चुका है। कुल मिलाकर ओवर की संख्या आपको बता दें, 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं। मुख्य अतिथि हमारे साथ पधार चुके हैं और रेणु जी उनका स्वागत करते हैं, एस्कॉर्ट कर रहे हैं, उनको बड़े मंच की ओर ले जा रहे हैं। हृदय से स्वागत है सर आपका, क्या बात है, आपने इस क्रिकेट श्रृंखला की गरिमा को बढ़ा दिया है। हेमंत जी का हृदय से स्वागत है, आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ बिताने के लिए आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्रिकेट श्रृंखला की गरिमा को आपने बढ़ाया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस छोर से नया ताजा ओवर लेकर गेंदबाज तैयार हो रहे हैं और राउंड विकेट ये गेंद, इस बार उल्टे हाथ से गेंद को खेलने का प्रयास किया, एलबीडब्ल्यू की अपील की गई है। थोड़ा ऐसा लगा कि नजदीकी मामला हो सकता है, लेकिन लेग बाय का संकेत किया अंपायर ने। नवीन जी ने अपने अनुभव को झोंका और कहा कि गेंद स्टंप्स को छोड़कर बाहर निकल रही थी। फ्रेंड्स के सीनियर प्लेयर हैं हेमंत जी और उनका दोबारा स्वागत करते हैं। बड़ा मंच जो बनाया गया है उन जैसे महानुभावों के लिए बनाया गया है और यह गेंद जिसको खेलने के प्रयास में चूक गए, दोबारा गेंद को लेकर गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। दिलीप बिजवा की गेंद तरुण के लिए, ड्राइव किया गेंद को, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गेंद जा चुकी है, 1 रन लेने का अवसर मिलेगा बैट्समैन को। इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़कर पहुंच चुका है 19 पर 5 विकेटों के नुकसान पर, 19 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। दिलीप बिजवा एक ऐसा नाम जो कि अच्छे ऑलराउंडरों में, अच्छे गेंदबाजों में गिना जाता है।
गेंद को लेकर अपने अनुभव को झोंकने के लिए तैयार हो रहे हैं। गेंद को पटकने के प्रयास में गेंद थोड़ा सा फिसल गई, दोबारा गेंद को लेकर वो अपने बॉलिंग मार्क की दिशा में बढ़ रहे हैं। क्या शानदार दृश्य देखने को मिल रहा है, कमाल की क्रिकेट श्रृंखला है। ये गेंद राउंड विकेट, जड़ से गेंद को निकाल दिया, ड्राइव किया फील्डर की दिशा में, हालांकि गेंद हवा में तैरती हुई एक्स्ट्रा कवर की दिशा में फील्डर की दिशा में कैच कर लिए गए। छठा विकेट गिरा। इस शानदार कैच के प्रायोजक थे फ्रेंच ट्रॉफी 2023। और जैसा आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की टीम जो कि बहुत अच्छा कर रही है। एक चौका अब तक लगा नहीं है। रियल फाइटर्स मलपे का हौसला बढ़ाते हैं, कहिए आइए जबरदस्त तरीके से प्रयास करना चाहिए। कम ऑन गाइस, ये गेंद ऑन साइड की दिशा में, फुल टॉस गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल, कलाइयों का उपयोग, गेंद को ऑन साइड की दिशा में धीरे से फ्लिक किया, 1 रन चुरा चुके हैं। कामाक्षी 11 मध्य प्रदेश की टीम को मुझे लगता है कि हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छा हुआ होगा उनका। निश्चित तौर पर आज नारियल पानी पीने के पश्चात वो बड़े तंदुरुस्त दिखाई पड़ रहे हैं। क्या शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी उनके दिखाई पड़ रही है, उनका हौसला बुलंद है, जबरदस्त प्रयास वो कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि कर्नाटक के इस क्षेत्र में, बेंगलोर में आपको यहाँ की आबो हवा पसंद आई होगी और जिस तरह से फ्रेंड्स बेंगलोर ने आपका जिसे कहते हैं कि एक गेस्ट के तौर पर जो स्वागत किया वो आपको रास आई होगी। और इस क्रिकेट श्रृंखला में आपका आगे का अगला मैच, आने वाले सारे मैचेस अच्छे हो, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। क्या बात है, ये गेंद ऑन साइड पर उछाल दिया, गेंद को हवा में तैरती हुई फील्डर की दिशा में जा रही है और ऐसे फील्डर्स तैनात हैं जिन्होंने कैच कर लिया। इस कैच के साथ ही एक और विकेट का पतन।
जो स्ट्राइक एंड पर हैं, आखिरकार उन्होंने साबित किया कि रियल फाइटर के वो बड़े फाइटर क्यों हैं। क्या कमाल का स्ट्रोक है, फुल टॉस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से, हालांकि बार बार वो बीट हो रहे थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने दिखा दिया कि वो जाबाज बल्लेबाजों में से एक है। कमाल का स्ट्रोक इस छोर से, नया ताजा ओवर, राउंड विकेट। ये गेंद दिलीप की ऑफ स्टंप के बाहर थी। एक अजब अलग अंदाज में वो गेंदबाजी करते हैं, गेंद को उंगलियों के बीच में फंसाते हैं, रिस्ट को थोड़ा सा नीचे की तरफ ले जाते हैं और राउंड विकेट गेंद में जो फिरकी देकर गेंद को वो थोड़ा सा स्विंग कराते हैं, बहुत अलग अंदाज के साथ। इस छोर से ये गेंद, दोबारा गेंद इस बार थोड़ा सा अंदर की तरफ आई, पिछले गेंद के मुकाबले में बीट कर गई बैट्समैन को, गुड लेंथ थी और तैरती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथ में जाकर समा गई। अभी कुछ देर पहले आपको मैंने एक बड़ा शानदार दृश्य दिखाया पतंग का, अब आपके सामने बिल्कुल विकेट कीपर के ऊपर आपको एक ड्रोन दिखाई पड़ रहा है। बहुत सुंदर, बहुत शानदार दृश्य है। इस छोर से राउंड विकेट, दिलीप की गेंद प्लेस किया, क्या खूबसूरत स्ट्रोक है। मेरिट के ऊपर खेलना इसे कहते हैं। गेंद को देखा, टप्पा खाकर ऑफ स्टंप के सीध पर थी, उसको आने दिया, थोड़ा सा अपने बैकलिफ्ट को रोकते हुए गेंद को कवर की दिशा में ढकेल दिया। हवा में थी स्ट्रोक, लेकिन जानते थे कि फील्डर काफी पीछे खड़े हैं, एक रन को पूरा कर लिया। एक पंछी और ड्रोन साथ साथ दूर दिखाई पड़ रहे हैं। ये आधुनिक पंछी है ड्रोन, जो दृश्य को कैप्चर करता है। ऑन साइड की दिशा में उछाल दिया है, कैच हो सकता है, फील्डर इंतजार कर रहे हैं, उनके पास गेंद उनके झोली में चली गई। शानदार कैच के साथ ही एक और विकेट का पतन। रियल फाइटर्स मलपे का एक और विकेट गिर चुका है, विकेटों की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 8 पर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप बिजवा गेंद को लेकर तैयार, एक और शिकार प्राप्त कर चुके हैं। शानदार गेंदबाजी, बैट्समैन ने गेंद को खेला जरूर, लेकिन फील्डर की दिशा में कैच कर लिए गए। राउंड विकेट, दिलीप की गेंद इस बार ड्राइव करने के प्रयास में, गेंद बल्ले का सिरा लेकर बाउंड्री लाइन की दिशा में थोड़ा सा धीमा पड़ गई। फील्डर ने गेंद को बाउंड्री लाइन के अंदर रोकने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन को शायद चूक चुकी है या नहीं देखना होगा। इस दौरान अंपायर ने संकेत किया कि नो बॉल है, और नो बॉल का संकेत नवीन जी ने किया। उसके साथ 4 रन कुल मिलाकर बनाए गए हैं। तो नवीन जी से पूछना चाहेंगे बाउंड्री है या नहीं है? जी नहीं, 3 रन और नो बॉल के रूप में 1 रन, यानी कि 4 रन खाते में जोड़ लिए गए। दिलीप बिजवा को सोचना होगा, क्योंकि जिस तरह से शायद मुझे लगता है कि शायद ओवर स्टेपिंग थी, जिसकी वजह से नवीन जी ने इसे वाइड करा, माफ कीजिएगा, नो बॉल करार दिया। इस ओवर की अगली गेंद फ्रेट का अवसर था, ड्राइव किया ऑन साइड की दिशा में, जड़ से निकालते हुए गेंद को, जो कि ब्लॉक होल में की गई थी, लेकिन लाइन मुझे लगता है कि मिडलर ऑफ स्टंप का था, जिसको खेलते हुए लॉन्ग ऑन क्षेत्र में 1 रन चुरा चुके हैं बैट्समैन। दर्शक प्रयास कर रहे हैं कि वो शांत रहें, क्योंकि जिस तरह से खेल का टेम्पो चल रहा है बहुत आनंदित है। राउंड विकेट, ये गेंद बाजवा के, माफ कीजिएगा, दिलीप की गेंद, और उनकी गेंद को खेलने के प्रयास में चूक गए। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। कुल मिलाकर ओवर की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 7 पर, माफ कीजिएगा, कुल 8 ओवर समाप्त कीजिएगा। तो इस प्रकार 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 8 ओवर की समाप्ति पर रन बन चुके हैं 38, और इस मैच को 33 रन से इस मैच को कामाक्षी 11 ने शानदार तरीके से जीत लिया। उनको बहुत बहुत बधाई हो, अभिनंदन, मेनी कांग्रेचुलेशंस। और मध्य प्रदेश की टीम ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन इस मैच में किया। रियल फाइटर्स मलपे को मुझे लगता है कि थोड़ी सी कमी रह गई। मैं अपनी तरफ से जाती तौर पर कहूंगा कि वो अगली श्रृंखलाओं में अच्छी मेहनत करें। उनका परफॉर्मेंस अच्छा जरूर था, लेकिन समय का साथ देना बहुत जरूरी हो जाता है। आज दिन शायद उनका नहीं था, उन्होंने अच्छा प्रयास किया बैटिंग और गेंदबाजी में, और उनको अगले श्रृंखला के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। ಸರ್ ಮೈಟಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತಂಡ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಶೀಲರಾಗಿದ್ದರೋ ಅವರ ಆಯ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಸಿದಂತಹ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಆಯ್ಕೆ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓ ಟು ಅಜಯ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಎರಡು ತಂಡ ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮ ಪಿಚ್ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದು ಲೈನ್ ಅಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯಮಾಡಿ ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪರ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಬುಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೈಟಿ ದಯಮಾಡಿ ತಾವುಗಳು ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಲ್ಪೆ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಇವಾಗಲೇ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಂತ ಮಲ್ಪೆಯ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.